Assalamualaikum first year class. I'm your teacher Mrs. Hadija. Nowadays we are doing chapter 5, that is network communication and protocols. Topics that we will cover today includes protocol and devices which are used in OSI model. OSI model that we have covered in our previous lecture. Then we will discuss transmission control protocol and internet protocol. These two protocols which are implemented on two of the layers of OSI model. Then we will discuss another architecture, another model which is based on OSI model and practically implemented model named as TCP IP architecture. Then we will compare both of the models, that is TCP IP model and OSI model. From our previous lectures, we are discussing about different data communication standards or protocols which are required for effective and efficient transmission. We have discussed that there may be chance of that their different devices may be communicating to each other, and these devices may be located nearby or may be located on different remote locations. And problem occurs when two different types of devices which are developed by different vendors or companies are communicating with each other. For this, standard protocols or standard conventions are required so that data must not be affected by the device type which is transferring or forwarding the data from sender to receiver. We discuss OSI model, which consists of different layers like physical layer which works cables on cables, then data link layer which works to avoid collision, then network layer which assigns source and destination IP address, transport layer which divide the packet and end-to-end works on end-to-end transaction, and then session layer which create different sessions, presentation layer which encrypts and decode and encode data, and then application layer which provide interface to the application. And we also discussed that OSI is a conceptual or theoretical model, and it is developed by ISO, International Standards Organization, in 1980s for data communication. Today we will discuss that different devices and different protocols according to OSI model, or different devices which are working on different layers of OSI model. First, we must know what does mean by protocol. Protocol is actually set of rules or standards. We also discussed that data communication standards, other name is protocols, and these conventions are used to exchange data throughout the network, and these protocols make data transmission efficient and effective. On the other hand, good implementation of protocol is base, or we can say is compulsory for effective data communication between sender and receiver. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोटोकॉल डिफ़ाइन कर देती है कि जो डेटा कम्युनिकेशन है वो इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो फॉरवर्ड किया जाएगा, और थ्योरेटिकल मॉडल के अंदर जैसे वैसे मॉडल के अंदर डिफ़ाइन कर दिया गया, ठीक है, लेकिन उसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको प्रैक्टिकली किस तरह से डिवाइसेस के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा जो एक्चुअली उस डेटा को फॉरवर्ड करेंगी या उस डेटा को प्रोसेस करेंगी. अब वो डिवाइसेस कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं जो एंड यूज़र्स जिनके ऊपर काम कर रहे होते हैं, और वो डिवाइसेस केबल्स भी हो सकती हैं, कनेक्टर्स हो सकते हैं, स्विचेस हो सकते हैं. उनके ऊपर चूँकि ये प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स इम्प्लीमेंट होने हैं, तो जो अच्छी इम्प्लीमेंटेशन है विल एक्चुअली मेक द डेटा कम्युनिकेशन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. Different protocols and or standards which are working or implemented on different layers are listed down in this table. You can see that table contains OSI layers, protocols,
which are implemented on different layers, and functions of each layer and device which is used or which is implemented the standard or protocol. The first layer, which is physical layer from receiving side, which works the conversion from bits to analog signals. Famous protocols which are implemented on physical layer are IEEE 802 standards. ये एक पूरी सीरीज़ है. IEEE एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बनाती है, और इसके जो 802 सीरीज़ है वो एक्चुअली केबलिंग और कनेक्टर्स और जो हमारा मीडियम है उससे रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स को डिफ़ाइन करती है. इसके अलावा दो और प्रोटोकॉल्स लाइक X.25 और फ्रेमले, ये एक्चुअली जो हमारी ATM की ट्रांजैक्शन होती है, इस तरह की ट्रांजैक्शन में ये प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं. तो फिज़िकल लेयर के लेवल के ऊपर जो एग्जांपल्स हैं प्रोटोकॉल की, वो X.25, फ्रेमले और IEEE के जो 802 सीरीज़ है वो है. देन वी ऑलरेडी डिस्कस दैट फिज़िकल लेयर के ऊपर जो प्रोटोकॉल है उनका काम क्या होगा कि वो जो केबल्स हैं और जो कनेक्टर्स हैं या जो रिपीटर्स हैं उनके लिए स्टैंडर्ड्स को डिफ़ाइन करती है कि वो किस तरह से एफिशिएंट ट्रांसमिशन बनाने के लिए डेवलप किए जाएंगे या मैन्युफैक्चर किए जाएंगे. दैन डेटा लिंक लेयर जो एक्चुअली फ्रेम्स बनाती है, और इसके अलावा जो कोलिजन हो सकती है डेटा फ्रेम्स के दरमियान, उसको अवॉइड करने के लिए स्टैंडर्ड्स डिफ़ाइन करती है. और ये भी चूँकि एक फ़िज़िकल लेवल के ऊपर काम कर रही होती है और इसके बाद डेटा जो एक फ़िज़िकल मीडियम के ऊपर ट्रैवल करना होता है, तो इसके लिए भी जो प्रोटोकॉल्स डिफ़ाइन किए गए हैं X.25 और IEEE की 802 सीरीज़ में से ही हैं. और इसका जो फंक्शन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं. फ्रेमिंग यानी फ्रेम्स बनाना, एरर कंट्रोल, इसके अलावा जो है कोलिजन को अवॉइड करने का मैकेनिज़्म डिफ़ाइन करती है. इस लेयर के लेवल के ऊपर जो डिवाइसेस काम कर रही है, यानी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो किन डिवाइसेस के ऊपर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, इनमें स्विचेस और जो NIC कार्ड यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो कि सिस्टम या CPU का पार्ट होता है जहाँ से डेटा निकल के मीडियम के ऊपर या वायर के ऊपर चढ़ना होता है. ये स्टैंडर्ड इन डिवाइसेस के लिए बनाए गए हैं या इम्प्लीमेंट किए जाते हैं इन डिवाइसेस के ऊपर. नेक्स्ट लेयर इज़ नेटवर्क लेयर. और नेटवर्क लेयर के ऊपर जो प्रोटोकॉल एक काम करता है, जो एक फ़ेमस प्रोटोकॉल है, दैट इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल. ठीक है, इसके अलावा और भी हैं जैसे ICMP प्रोटोकॉल है, लेकिन वन ऑफ द फेमस प्रोटोकॉल जो नेटवर्क लेयर के ऊपर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, दैट इज़ IP प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल. और नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है, एक्चुअली राउटिंग या जो फॉरवर्डिंग है डेटा का, जो रूट बताना है, ठीक है, कि डेटा किस पाथ से गुजर के जाएगा, वो डिफ़ाइन करता है. और ये वो कैसे करती है ये लेयर कि वो सोर्स और डेस्टिनेशन IP एड्रेसेस जो है वो असाइन करती है. ठीक है, और ये लेयर जो है वो राउटर्स के ऊपर, ये जो फंक्शनैलिटीज़ हैं एक्चुअली ये राउटर के ऊपर इम्प्लीमेंट की जाती हैं. और राउटर के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वो दो नेटवर्क्स को आपस में मिलाता है, ज्वाइन करता है. देन व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है कि वो पैकेट्स बनाती है, डेटा के मैनेजेबल यूनिट्स बनाती है. और इसके ऊपर जो दो प्रोटोकॉल काम करते हैं वो हैं TCP और UDP. TCP एक्चुअली ज़्यादा यूज़ होता है, स्पेशली जो इंटरनेट कम्युनिकेशन है, जिसमें हमें एक रिलायबल कनेक्शन चाहिए होता है और हमें एक कंफर्मेशन चाहिए होती है कि हमारा डेटा रिसीवर तक पहुंच गया है कि नहीं पहुंच गया. तो TCP एक्चुअली इंटरनेट के ऊपर ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया जाता है. ठीक है, और ये राउटर्स और गेटवे के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है. और राउटर गेटवे का हमने डिफरेंस क्या पढ़ा था कि राउटर सेम नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है, जबकि गेटवे दो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है. तो TCP प्रोटोकॉल ज़्यादा यूज़ होता है. UDP एक्चुअली रिलायबल कनेक्शन के लिए यूज़ नहीं होता, कि वो कंफर्म नहीं करता है कि डेटा रिसीवर को मिल गया है कि नहीं मिल गया है. ट्रांसपोर्ट लेयर की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो एंड टू एंड
जो यूज़र टू यूज़र कनेक्शन है हमने कहा था, यानी कंप्यूटर टू कंप्यूटर कनेक्शन है, उसको इस्टेब्लिश और मेंटेन और टर्मिनेट करती है ट्रांसपोर्ट लेयर। और इसके अलावा एरर कंट्रोल को मैनेज करती है कि वो काउंट करती है जो नंबर ऑफ़ पैकेट्स एक मैसेज से रिलेटेड हैं, क्या वो सारे मिल गए, और दोबारा उसको रीअसेंबल करके अपनी नेक्स्ट लेयर को दे देती है। व्हेन वी टॉक अबाउट सेशन लेयर के ऊपर जो प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है, दैट इज़ NetBIOS इज़ वन ऑफ द प्रोटोकॉल दैट इज़ वर्किंग ऑन सेशन लेयर। एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ NetBIOS या उन प्रोटोकॉल्स का जो सेशन लेयर के ऊपर काम कर रहे होते हैं कि वो डिफरेंट सेशंस क्रिएट करते हैं और उनको मेंटेन और टर्मिनेट करते हैं। जैसे मेरी एक डिवाइस के साथ एक से ज़्यादा सर्वर्स के साथ मैं कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकती हूँ, मैं एक से ज़्यादा रिमोट कंप्यूटर के साथ इस्टेब्लिश कर सकती हूँ कनेक्शन, तो वो मेरे जो तमाम सेशंस हैं उनको जो है वो सेशन लेयर प्रोटोकॉल करती, सेशन लेयर जो है मैनेज करती है। और इसके लिए जो प्रोटोकॉल काम करता है दैट इज़ NetBIOS। एंड दिस लेयर इज़ यूजली इम्प्लीमेंटेड ऑन गेटवेज, क्योंकि गेटवेज भी सॉर्ट ऑफ सेशन इस्टेब्लिश करने के लिए हेल्प कर रहे होते हैं बिटवीन टू नेटवर्क्स। इसके अलावा ये पर्सनल कंप्यूटर्स और सर्वर्स के ऊपर जो है वर्क कर रही होती है, यानी ये स्टैंडर्ड्स इनके ऊपर इम्प्लीमेंट किए गए होते हैं। देन नेक्स्ट लेयर इज़ प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम है कि ये एक्चुअली डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करती है, और इसके अलावा इनकोडिंग और डिकोडिंग करती है। डेटा को ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है कि जो रिसीविंग लेयर्स के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, या जो रिसीविंग डिवाइसेस हैं जो बीच में इन बिटवीन डिवाइसेस हैं उनके लिए अंडरस्टैंडेबल हो। और नॉर्मली जो काम है वो हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कर रहा होता है, या डिफरेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हैं कंप्यूटर्स के ऊपर इंस्टॉल हुए हुए वो कर रहे होते हैं ये काम। और इसके अलावा एक प्रोटोकॉल है नेम एज HTML, एक लैंग्वेज है जिसको यूज़ करके एक्चुअली फॉर्मेटिंग की जाती है विद इन द वेबसाइट्स या उन इंटरफेसेस के ऊपर जिनके थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। देन व्हेन वी टॉक अबाउट और इसके ऊपर गेटवे और PCs और सर्वर्स काम कर रहे हैं, यानी जो ये सारी इनकोडिंग डिकोडिंग हो रही होती है, इनक्रिप्शन हो रही हो, ये एक्चुअली PCs के लेवल के ऊपर हो रही होती है, जो हमें एप्लीकेशन नज़र आ रही होती है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। और वो एप्लीकेशन हमें कौन प्रोवाइड करती है? एप्लीकेशन लेयर, राइट, विच इज़ द लास्ट लेयर फ्रॉम रिसीविंग साइड एंड द फर्स्ट लेयर फ्रॉम सेंडिंग साइड। और इस लेयर का एक्चुअली काम है कि ये एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है, देन जब हम इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं तो तब उसकी इनकोडिंग डिकोडिंग होती है, और उसके बाद सेशन जो है लेयर उनकी बारी आती है। एप्लीकेशन लेयर के ऊपर जो एक प्रोटोकॉल काम कर रहा था दैट इज़ HTTP। इसके अलावा जो हम ईमेल करते हैं उसके पीछे एक प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दीज टू प्रोटोकॉल्स आर पॉपुलर फॉर एप्लीकेशन लेयर। और काम क्या होता है एप्लीकेशन लेयर का, इन प्रोटोकॉल्स का, कि वो एक इंटरफेस और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि यूज़र जो है वो नेटवर्क के साथ या इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट कर सके। एंड दिस लेयर इज़ ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड ऑन PCs, सर्वर्स एंड गेटवेज। Right, there is another pictorial representation of protocols of OSI models which are implemented on different layers of OSI model। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं दिस इज़ प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, जो पहली लेयर है एप्लीकेशन लेयर, और इसके ऊपर जो है जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स काम करें दे आर लिस्टेड डाउन हेयर। दैन प्रेजेंटेशन लेयर, और प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर हमने कहा कि HTML और जो आपकी डिफरेंट डेटा की रिप्रेजेंटेशन होती है कि वो इमेज की फॉर्म में, या वो वॉइस की फॉर्म में, या वो ऑडियो की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये डेटा रिप्रेजेंटेशन होती है। दैन सेशन लेयर, ठीक है, और इसके यहाँ पे प्रोटोकॉल्स गिवन हैं। दैन ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसके ऊपर हमने कहा कि TCP UDP दो फेमस प्रोटोकॉल हैं जो काम कर रहे होते हैं, इम्प्लीमेंट किए गए हैं। नेटवर्क लेयर, जिसके ऊपर IP इज़ मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल। इसके अलावा ICMP और IGMP भी दो और अदर प्रोटोकॉल्स हैं। इसके अलावा ARP है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है।
ठीक है। जो आप अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर डिटेल के साथ पढ़ोगे कि इन प्रोटोकॉल्स का क्या काम है, इस लेवल के ऊपर हम सिर्फ 2 ही प्रोटोकॉल्स को थोड़ा सा डिटेल से स्टडी करेंगे, दैट इज़ टीसीपी जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया है, और आईपी जो कि नेटवर्क लेयर के ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया है। नेक्स्ट वन इज़ डेटा लिंक लेयर, और डेटा लिंक लेयर के ऊपर एक्चुअली जो IEEE के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स वाले प्रोटोकॉल हैं वो इम्प्लीमेंट किए गए हैं, और इसके अलावा ऐसे प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स इम्प्लीमेंट किए गए जो कोलिजन को अवॉइड करने के लिए, फ़िज़िकल लेवल के ऊपर कोलिजन को अवॉइड करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, जिनको मैक स्टैंडर्ड्स भी कहा जाता है, वो इम्प्लीमेंट किए गए हैं। दैन द लास्ट वन इज़ द फिज़िकल लेयर, जिसके ऊपर जो है ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो एक्चुअली कनेक्टर्स और केबल्स और रिपीटर्स के लिए हैं, ठीक है, और वो यहाँ पे लिस्ट डाउन हुए हुए हैं। दिस इज़ वेरी गुड डायग्राम फॉर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ ईच लेयर एंड देन द प्रोटोकॉल्स implemented on each layer. Here's another table of OSI models, layers of OSI model, और यहाँ पे भी जो है बताया गया है कि कौन कौन से प्रोटोकॉल जो हैं लेयर्स के ऊपर है, जैसे कि जो कि एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर तीनों जो है पीसी, सर्वर्स और जो आपकी यूज़र के एंड पे डिवाइस हैं उसके ऊपर काम कर रही होती हैं। तो ये सेम ऑलमोस्ट प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। कुछ जो हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ कंफर्मेशन या लॉगिंग या सिक्योरिटी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे सेशन लेयर के लिए, और कुछ कोडिंग, डिकोडिंग और फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे प्रोटोकॉल्स। दैन ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर टीसीपी, यूडीपी हैं, नेटवर्क लेयर के ऊपर आईपी, आईसीएमपी और आईजीएमपी हैं, डेटा लिंक लेयर के ऊपर IEEE के स्टैंडर्ड्स हैं, और फिज़िकल लेयर के ऊपर अभी IEEE के स्टैंडर्ड्स। इसके अलावा X.25 प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया, और फ्रेम रिले का जो प्रोटोकॉल है वो दोनों लेयर्स के ऊपर काम कर रहा होता है, राइट। द नेक्स्ट topic is transmission control protocol and internet protocol, two most widely used protocol on for data communication, especially for transferring data over the internet. As we already discussed that data transmission or data communication is not possible efficiently and successfully without द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, ठीक है। पहले वो स्टैंडर्ड्स डिफ़ाइन किए जाते हैं और दैन उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है ऑन डिफरेंट लेवल्स। TCP is one of the implementation of such concepts and such standards. TCP stands for Transmission Control Protocol and IP stands for Internet Protocol. And these are two baseline for data communication, either at local or within a limited area, or especially over the internet. If we talk about TCP protocol, it is considered as the backbone of internet communication. TCP IP protocol is developed by ARPA. Sometime you will get the डेवलपिंग अथॉरिटी एज ARPA, एंड सम टाइम जब आप सर्च करते हो तो ये आपको डारपा के नाम से मिलती है। डारपा इसलिए इसको कहा जाता है कि इट वाज वर्किंग, ARPA वाज एन रिसर्च एजेंसी जो एक्चुअली रिसर्च वर्क के ऊपर काम करी थी और इट वॉज़ अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था, उनके अंडर ये रिसर्च के ऊपर काम करी थी, और इस एजेंसी ने जो है ऑन द डिमांड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है वो TCP IP प्रोटोकॉल डेवलप किया था टू कनेक्ट डिफरेंट साइट्स ऑफ द US आर्मी, उनके जो कंप्यूटर्स उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए। और देन TCP IP को जो है बाद में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो कंप्यूटर्स थे उनके रिसर्च वर्क को आपस में शेयर करने के लिए भी इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। एंड देन इट वाज implemented all over the world to connect the computers which are located all over the world and used by different users in different
areas of the world or different regions of the world. So actually it is developed by ARPA, and it is funded by the Department of Defense of USA, right? That's why the first internet is named as ARPANET, ठीक है। अगर आपको जो है मिलता है कि फर्स्ट जो नाम था इंटरनेट का वो इंटरनेट नहीं था शुरू से, ठीक है। जब ये कमर्शियली यूज़ होना शुरू हुआ फिर इसका नाम इंटरनेट रखा गया, अदरवाइज़ फर्स्ट इसको जो ARPANET कहा जाता है इन रेलेवेंट टू द ARPA एजेंसी। One of the most common use, or we can say capability or the feature of TCP/IP is that as I've already told you that it is baseline or it is a backbone of communication over the internet. The communication over the internet between two devices is not possible without TCP/IP protocol nowadays. अब वो दो कंप्यूटर्स जो हैं वो दो एंड टू एंड यूज़र्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि मेरा कंप्यूटर और मेरे किसी और रिलेटिव या फ्रेंड का कंप्यूटर जिसको मैं डेटा सेंड कर रही हूँ, और ये कम्युनिकेशन मेरे और किसी सर्वर के दरमियान भी हो सकती है, और वो सर्वर फेसबुक का हो सकता है, इंस्टाग्राम का हो सकता है, या गूगल का सर्वर हो सकता है। कोई भी दो डिवाइसेस जो इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेट कर रही हैं उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन है इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट TCP/IP प्रोटोकॉल। And what TCP/IP protocol it actually does, it actually provides end-to-end data communication. end-to-end का मतलब है कि ये मेक श्योर करता है कि जो डेटा सेंडर ने कहीं भी बैठ के सेंड किया है वो रिसीवर तक पहुंच गया है। और TCP/IP को इसलिए कहा जाता है इट प्रोवाइड्स अ रिलायबल कनेक्शन बिटवीन टू यूज़र्स और बिटवीन टू नोड्स और बिटवीन टू डिवाइसेस connected over the internet. Secondly, as we already discussed कि TCP प्रोटोकॉल का काम क्या है कि वो यहाँ TCP प्रोटोकॉल जो है वो एक्चुअली ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया, और ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है कि वो डेटा को पैकेट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो TCP प्रोटोकॉल के थ्रू या उसके स्टैंडर्ड्स के थ्रू एक्चुअली पैकेट्स का साइज़ डिसाइड किया जाता है कि पैकेट्स का साइज़ क्या होगा, कि नेक्स्ट जो डिवाइस है वो कितने साइज़ का पैकेट जो है वो आगे फॉरवर्ड कर सकती है। इसके अलावा TCP प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ही जो है वो रूट डिसाइड किया जाता है। एज वी हैव डिस्कस दैट नेटवर्क लेयर इज़ पॉसिबल फॉर राउटिंग, यानी जो पाथ है वो डिसाइड करना नेटवर्क लेयर का काम है। एंड IP प्रोटोकॉल इज़ इम्प्लीमेंटेड ऑन नेटवर्क लेयर। ऑन द अदर हैंड TCP protocol is implemented on transport layer. That's why TCP/IP overall decides that how packets will be made, how data will be forwarded, and it will also decide, this protocol will decide that the packets will follow which path for the efficient transmission. अब चूँकि बीच में राउटर्स और गेटवेज मौजूद हैं, ठीक है, दोनों एंड यूज़र्स के दरमियान, ठीक है, जहाँ से डेटा जो है वो गुज़र के जाएगा, तो वो जो TCP/IP प्रोटोकॉल है उनमें से TCP प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल होगा पैकेट्स बनाने में सेंडिंग साइड पे, ठीक है, और रिसीविंग साइड पे दोबारा उन पैकेट्स को रीअसेंबल करके और ये कंफर्म करेगा कि पैकेट सारे ऑर्डर में आ गए हैं और उनको वो सीक्वेंस में रीअसेंबल करेगा। ऑन द अदर हैंड IP प्रोटोकॉल क्या करेगा, वो पाथ डिसाइड करेगा कि पैकेट्स जो हैं वो कौन सा पाथ जो है वो फॉलो करेंगे। आइदर ऑल द पैकेट्स विल फॉलो द सेम पाथ और दे विल बी फॉरवर्ड टू डिफरेंट पाथ्स। एक्चुअली शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो प्रेफर किया जाता है, लेकिन अगर शॉर्टेस्ट पाथ के ऊपर कंजेशन हो, डेटा ट्रैफिक ज़्यादा हो, क्योंकि वो डिवाइस और बहुत सारे नेटवर्क्स के साथ भी लिंक्ड होती है, देन द IP प्रोटोकॉल विल फॉरवर्ड द पैकेट्स फ्रॉम अनदर पाथ, जो कि जहाँ पे कंजेशन, यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो कम होगी। ये बिल्कुल इस तरीके से होता है कि जैसे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब कहीं ट्रैफिक एक रोड के ऊपर
आ जाती है ज़्यादा, तो बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स जगह जगह लगे होते हैं कि जो पीछे से आने वाले ड्राइवर्स को ये बता रहे होते हैं कि आगे जो रास्ता है वहाँ पे कंजेशन है, यू कैन फॉलो अनदर पाथ, और वो दूसरा पाथ भी वो बोर्ड्स जो हैं वो बता रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो आईपी प्रोटोकॉल है, पहले तो वो शॉर्टेस्ट पाथ डिसाइड करता है कि यहाँ से पैकेट्स जाएंगे इस यूज़र के लिए, लेकिन अगर उस शॉर्टेस्ट पाथ के ऊपर जो है वो कंजेशन होती है या वो पाथ जो है वो अवेलेबल नहीं होता है फॉर सम रीज़न, वहाँ की जो डिवाइस है वो आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकती, देन द आईपी प्रोटोकॉल जो है वो किसी और पाथ के ज़रिए से डेटा को जो ट्रांसफ़र करेगा। देन रिसीविंग एंड के ऊपर जो डिवाइस होगी जिसके ऊपर टीसीपी प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट होगा, वो ये एक एक्नॉलेजमेंट का मैसेज सेंड करेगी सेंडिंग डिवाइस को कि मुझे पैकेट सारे मिल गए हैं और मैंने उनको रीअसेंबल करके नेक्स्ट लेयर को फॉरवर्ड कर दिया है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ TCP/IP प्रोटोकॉल एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। Right, we are talking about that in network layer decides the routing or the path, और हमने ये भी बात की कि इसके लिए वो सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेसेस असाइन करती है, और जो एड्रेसेस असाइन करती है नेटवर्क लेयर, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड थ्रू इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, हमने ये भी बात करी जो इंटरनेट प्रोटोकॉल किसी डिवाइस के ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ होगा वो एक्चुअली पाथ जो है डिसाइड करेगी, एंड दीज एड्रेसेस आर कॉल्ड एक्चुअली IP एड्रेसेस और इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस। एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस आर एक्चुअली अ न्यूमेरिकल लेबल और न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एड्रेस ऑफ ईच डिवाइस और ईच होस्ट विच इज़ पार्टिसिपेटिंग इन डेटा कम्युनिकेशन। यानी जब भी आपकी कोई डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होगी, इंटरनेट के ऊपर आएगी, उसको एक यूनिक numeric number assign होगा automatically, and it will be done by the network layer on the basis of internet protocol standards, and this address is called IP address और internet protocol address। और ये actually पहचान देता है किसी भी डिवाइस को इंटरनेट के ऊपर, एज देयर आर मिलियंस ऑफ डिवाइसेस विच कनेक्ट्स एट द सेम टाइम टू द इंटरनेट। तो हर कंप्यूटर की जो एक पहचान है इट विल बी थ्रू इट्स IP एड्रेस। वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ IP एड्रेस इज़ हेयर। ठीक है, देयर आर मिलियंस ऑफ IP एड्रेसेस विच आर रजिस्टर्ड अप टिल नाउ, और हम इसको थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट जो कैटेगरीज़ हैं डिफरेंट IP एड्रेसेस की वो क्या हैं, वो क्यों बनाई गई हैं, डिफरेंट IP एड्रेस की क्लासेस बना दी गई हैं, किसको कौन सा IP एड्रेस साइन होगा और किस बेसिस पे होगा, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। Another concept which is relevant to the TCP/IP is the TCP/IP ports। पोर्ट्स का टॉपिक हमने ऑलरेडी एज हार्डवेयर जो है सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है कि हर कंप्यूटर के साथ वो इंटरफेस जिसके थ्रू किसी कंप्यूटर के अंदर डेटा जो है वो एंटर होता है या लीव करता है, वो पोर्ट कहलाती है, विच इज़ एक्चुअली अ गेटवे बिटवीन द डिवाइस जो कीबोर्ड माउस है उसके और कंप्यूटर के दरमियान। बिल्कुल इसी तरह से वो नेटवर्क पोर्ट या जो मॉडेम जिस के साथ कनेक्टेड है वो वायरलेस मॉडेम भी हो सकता है। ठीक है, उस पोर्ट की अगर बात की जाए तो IP एड्रेस के अलावा हर कंप्यूटर जो इंटरनेट के ऊपर आता है या जो हर डिवाइस इंटरनेट के ऊपर आती है लाइक मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप, उसको एक यूनिक पोर्ट नंबर भी असाइन की जाती है, स्पेसिफिक पोर्ट नंबर असाइन की जाती है। IP एड्रेस इज़ एक्चुअली अ लॉजिकल एड्रेस है जो ऑटोमेटिकली असाइन होता है, एक लॉजिकल एड्रेस है, एंड पोर्ट नंबर इज़ एक्चुअली एग्जैक्टली स्पेसिफाइज द होस्ट जहाँ से डेटा निकलेगा या वो होस्ट जो डेटा एक्चुअली सेंड करेगा। ठीक है, हर वो डिवाइस जो डेटा सेंड करेगी इंटरनेट के ऊपर और हर वो डिवाइस जो डेटा रिसीव करेगी विल बी असाइंड an IP address and a port number, a specific port number, जिससे एक्चुअली उस
डिवाइस की पहचान होगी कि डेटा आ कहाँ से रहा है, एक्चुअली किस कंप्यूटर से आ रहा है, ठीक है, और किस कंप्यूटर के पास जो है रिसीव हो रहा है. एज वी आर सेइंग दैट TCP मैनेजेस और लुक आफ्टर्स दैट कि डेटा एग्जैक्टली उसी कंप्यूटर के पास पहुँचे या वो पैकेट सारे उसी कंप्यूटर के पास पहुँचे जिसके लिए वो सेंड किए गए हैं. तो इसके लिए एग्जैक्ट पाथ होना और एग्जैक्ट कंप्यूटर को लोकेट करना ज़रूरी है. एंड इट इज़ डन विद द कम्बिनेशन ऑफ पोर्ट नंबर एंड IP एड्रेस नंबर. जैसे अगर आप एक जो घर का एड्रेस होता है उसमें सिर्फ स्ट्रीट नंबर सम टाइम कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है, और सिर्फ हाउस नंबर भी जो है एग्जैक्टली किसी पोस्टमैन को पहुंचने में कंफ्यूज कर सकता है. सो बोथ थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, स्ट्रीट नंबर अलॉन्ग विद द हाउस नंबर. सो on the internet for communication, both things, IP addresses and unique port number is very important, and it is assigned to each device which appears on the internet. There are almost total 65,535 TCP IP ports which are assigned to different devices which are part of the internet. ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि इतनी कम पोर्ट्स हैं और कंप्यूटर्स बहुत सारे इंटरनेट के ऊपर आते हैं. इसका मतलब है कि एक सेम पोर्ट नंबर जो है वो एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को असाइन की जा सकती होगी, ठीक है. हु इज़ द अथॉरिटी हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग IP एड्रेसेस एंड पोर्ट नंबर? इट इज़ INA, स्टैंड्स फॉर इंटरनेट असाइन नंबर्स अथॉरिटी. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है बेस्ड इन USA जो एक्चुअली उस वक्त से जब से जो है वो TCP IP प्रोटोकॉल डेवलप किया गया बाय ARPA उस वक्त से काम कर रही है इन कोलैबोरेशन विद ARPANET एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस. एंड इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है IP एड्रेसेस और पोर्ट नंबर असाइन करने के डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट यूज़र्स को, और एक्चुअली मेनली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को ये पोर्ट नंबर्स और IP एड्रेसेस जो है वो अलॉट कर देती है. देन वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स अपने यूज़र्स को नंबर अलॉट कर देते हैं. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की जो एग्जांपल PTCL है, नियाटेल हो सकता है कि नियाटेल और PTCL अथॉरिटीज़ हैं कि जो हमारे कंट्री के अंदर हमें इंटरनेट सर्विस दे रहे हैं, और ये एक्चुअली INA से स्पेसिफिक रेंज ऑफ IP एड्रेसेस बाय कर लेते हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस TCP IP architecture, which I already told you, and other standard, or we cannot say it is another standard, it is actually practical implementation of OSI model. क्योंकि हम कह रहे हैं OSI मॉडल एक रेफरेंस मॉडल है, एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है जिसको फॉलो किया जा सकता है फॉर डेटा कम्युनिकेशन. एंड TCP IP प्रोटोकॉल की बेसिस के ऊपर जो एक प्रैक्टिकल मॉडल बनाया गया है उसको TCP IP मॉडल कहा जाता है. एज नेम शोज दैट इट इज़ बेस्ड ऑन TCP IP प्रोटोकॉल सूट और ग्रुप ऑफ protocols named as TCP and IP. TCP IP protocol or model has 4 layers as compared to OSI model जिसके अंदर कितनी थी 7 layers थी. These layers are named as application layer, transport layer, network layer and network interface layer. भी कहीं आपको लिस्ट डाउन हुआ मिलेगा, कहीं नेटवर्क एक्सेस लेयर लिस्ट डाउन हुआ मिलेगा, और कहीं आपको फिज़िकल नेटवर्क लेयर लिस्ट डाउन हुआ मिलेगा, ठीक है. इट इज़ सेम फिज़िकल नेटवर्क जो फिज़िकल लेयर की जगह है, ठीक है. हाउ दीज 4 लेयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन 2 यूज़र्स. हियर इज़ अनदर pictorial representation of TCP IP model, and in comparison यहाँ पे OSI मॉडल भी दिखाएगा कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है देखने में. अगर हम इसके ब्लॉक डायग्राम के ज़रिए से इसको कंपैरिजन करने की कोशिश करें. OSI मॉडल के अंदर हमने क्या पढ़ा था, 7 लेयर्स हैं, ठीक है. ऑन द अदर हैंड TCP IP मॉडल के अंदर क्या है कि जो फर्स्ट 3 लेयर्स हैं OSI मॉडल की, दीज आर एक्चुअली combined in a single layer named as application layer.
ठीक है, हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि जो फर्स्ट तीनों लेयर्स हैं ये एक्चुअली पीसीज और सर्वर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट होती हैं और ये डेटा लेवल के ऊपर काम कर रही थी। डेटा को या तो यूज़र को अलाउ कर रही हैं कि वो डेटा को एक्सेस कर सके या उसको उसकी डिफरेंट फॉर्मेटिंग कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये पहली तीनों लेयर्स की जो फंक्शनैलिटी है OSI मॉडल की वो परफॉर्म कर रही होती है TCP/IP मॉडल में सिर्फ एप्लीकेशन लेयर। सो दीज 3 लेयर्स आर कंबाइंड इनटू वन नेम्ड एज एप्लीकेशन लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर वाली फंक्शनैलिटी एज इट इज़ प्रोवाइड करेगी TCP/IP मॉडल में। नेटवर्क लेयर एज इट इज़ रहेगी, कुछ पिक्चर्स के अंदर, कुछ इंटरनेट कंटेंट के अंदर आपको ये इंटरनेट लेयर के नाम से भी मिलेगी, ठीक है, जिसका काम रूट बताना है इंटरनेट के ऊपर। एंड जो लास्ट दोनों लेयर्स हैं दे आर आल्सो कंबाइंड इनटू वन लेयर नेम्ड एज नेटवर्क इंटरफेस लेयर, नेटवर्क एक्सेस लेयर और फिज़िकल नेटवर्क लेयर। सो एज़ कम्पेयर टू OSI मॉडल जो उसको इम्प्लीमेंट किया गया है वो सिर्फ 4 लेयर्स के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया है। Here is another comparison diagram between OSI model and TCP/IP model। कहीं जगह जो है जो ओरिजिनल TCP/IP मॉडल है वो सिर्फ 4 लेयर्स के ऊपर आपको मिलेगा और जो बाद में उसकी जो एक अपडेशन है वो आपको 5 लेयर्स की बेस पे मिलेगी, जहाँ पे डेटा लिंक लेयर भी ऐड कर दी गई है। यानी फ़िज़िकल लेयर और डेटा लिंक लेयर को कंबाइन करने के बजाय इनको सेपरेटली जो है वो इम्प्लीमेंट करने का भी आपको स्टडीज़ मिलती हैं या रिसर्च मिलती है। इफ़ यू टॉक अबाउट द फंक्शनैलिटीज़ ऑफ TCP/IP लेयर्स, they are same as performed by the OSI model layers। एप्लीकेशन लेयर का हमने क्या कहा कि जो फर्स्ट 3 लेयर्स हैं वो कंबाइन कर दी गई हैं इनटू एप्लीकेशन लेयर। सो एक्चुअली इट अलाउज़ एक्सेस टू द इंटरनेट और नेटवर्क, ठीक है। अगर लोकल एरिया नेटवर्क है तो वहाँ पे नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए जो इंटरफेस प्रोवाइड करेगी वो एप्लीकेशन लेयर होगी। और देन जो फॉर्मेटिंग और डीफॉर्मेटिंग है और इसके अलावा कनेक्टिविटी है और सिक्योरिटी है और लॉगिंग वाली जो सर्विसेज हैं दीज ऑल विल बी प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेशन लेयर, right। On the other hand, transport layer will be responsible for making packets of the data and for the error control के लिए कैसे कि वो रिसीविंग साइड के ऊपर एग्जैक्टली उन्हीं पैकेट्स को असम्बल करेगी जो उस एप्लीकेशन के लिए हैं। एंड ऑन द अदर हैंड मैंने आपको कहा कि आप नेटवर्क लेयर भी आपको कहीं ये लेबल हुई मिलेगी और कहीं आपको ये इंटरनेट लेयर मिलेगी और इसका काम क्या होगा, राउटिंग या जो पाथ डिसाइड करना है बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर, यानी जो इंटर नेटवर्किंग है, पाथ डिसाइड करना कि डेटा किस पाथ से जाएगा। देन द लास्ट लेयर इज़ नेटवर्क इंटरफेस या जिसको नेटवर्क एक्सेस लेयर के नाम से भी कई जगह लेबल किया गया है। ये क्या करेगी, जो लास्ट दोनों लेयर्स की फंक्शनैलिटीज़ है जिसमें फ्रेमिंग करना है या कोलिशन को अवॉइड करना है या मैक एड्रेस प्रोवाइड करना है और इसके अलावा जो केबल्स के और मीडियम के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो डिफ़ाइन करना या कनेक्टर्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो प्रोवाइड करना, वो किस लेयर का काम होगा, नेटवर्क इंटरफेस लेयर का इन TCP/IP लेयर मॉडल, राइट। हियर इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन TCP/IP model and OSI model, and this is taken from your book. You can search differences as well from the internet or you can take help from the internet. The first difference between these two models is that TCP/IP stands for Transmission Control Protocol and Internet Protocol. On the other hand, OSI model stands for Open System Interconnection or OSI model. TCP/IP model consists of 4 layers. On the other hand, OSI model consists of 7 layers. TCP/IP model was developed by DARPA under the
फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, तो कहीं आपको ज़्यादातर ये भी मिलता है कि ये एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ही डेवलप किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डारपा भी लिख सकते हैं और आप डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस भी लिख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड OSI इज़ developed by ISO or International Standard Organization. TCP/IP model is actually a client-server model in which one client usually connect to a server. जैसे मैं जो है वो एक सर्वर के साथ कनेक्ट करती हूँ या मैं किसी और यूज़र के साथ भी समटाइम कनेक्ट करती हूँ, तो मैं एक सर्वर के थ्रू ही कनेक्ट कर रही होती हूँ कि एक सर्वर ही मेरी जो है रिक्वेस्ट दूसरे यूज़र तक पहुंचा रहा होता है थ्रू अ सर्वर. सो इट इज़ बेसिकली अ क्लाइंट सर्वर model for data transmission over the internet. On the other hand, OSI model is a theoretical model which provide basis, or we can say standards for the data communication. TCP/IP model is actually implementation of OSI model. On the other hand, OSI model is just a reference model जिसको रेफ़र किया जा सकता है और जिसकी बेसिस पे कोई भी और मॉडल इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. The last difference is that the TCP/IP model is based on TCP/IP protocol suite, while OSI model is a layer based model, as it's just a reference model, so it is a layer based model. On the other hand, TCP/IP model is implementation on the basis of TCP/IP protocol suite. So that's all from today's lecture. You are going to attempt 2 questions from your exercise. One is short question that you have to compare TCP/IP model and OSI model, and it is given on page 85 in your textbook. Then you have to describe 4 layers of TCP/IP model. Description of TCP/IP model is not given in your textbook, so you have to take help from the internet, and you have to attempt this question as long question. That's all from today's lecture. I hope you get the concept of TCP/IP and TCP/IP architecture.